नमस्कार साथियों, जो मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट की थी उसकी फर्स्ट हियरिंग हो गई है और हाई कोर्ट की तरफ से क्या-क्या अपडेट है वो सारी चीज़ें तो मैं दिखाऊँगा ही आपको। साथ में हम वीडियो भी दिखाएँगे कि जो वीडियो हाई कोर्ट में चर्चा हुई उसमें क्या-क्या निष्कर्ष निकला है। सारी अपडेट मैं आपको दूँगा, लेकिन एक बात आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि ये सिर्फ़ कुछ लोगों का मुद्दा नहीं है। यहाँ आप सब लोगों को सामने आना पड़ेगा। आपको पता है लगभग 1 लाख लोगों ने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का फ़ॉर्म फिल किया था। उसमें से लगभग 4000 गेस्ट फैकल्टी है बस। पूरे मध्य प्रदेश में 4000 गेस्ट फैकल्टी हैं, उसमें से काफ़ी योग्यता नहीं रखते थे, यानी फ़ॉर्म फिल नहीं किया होगा। बाकी जितने विद्यार्थी हैं वो कहाँ गए? क्योंकि हमारा जो ग्रुप था, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ़ 800 लोग जुड़े हुए हैं। यानी 800 लोगों की क्या अकेली मुहिम है? क्योंकि जब तक आप सब लोग साथ नहीं देंगे, ये मुहिम सफल नहीं हो पाएगी। एक तरफ कोर्ट केस तो चल ही रहा है, बाकी सभी लोगों को एक जगह आना पड़ेगा। क्योंकि आज ये 25% है, कल ये 50% होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आपने देखा था जो अतिथि टीचर काम कर रहे थे, यानी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उसमें पहले 25% ही था और 50% हो गया, आपको समझ में नहीं आया कि कब वो हो गया। वाक़ई विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है, यानी 1 लाख विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को, सिर्फ़ 4000 3 से 4000 लोगों के हितों के लिए आप देख सकते हैं इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोगों ने लापरवाही बरती है, हम लोग एकजुट नहीं हुए। वो 3000 के 3000 लोग एकजुट हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? हम लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। तो आज ये समय है, प्लीज़ मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, टेलीग्राम लिंक दी हुई है। ये सिर्फ़ इसी के लिए ये ग्रुप बनाए हुए हैं कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाएँ एक जगह। ये किसी का एक व्यक्ति का मामला नहीं है दोस्तों, सारे लोग इकट्ठे हो जाएँ। पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद न्यूज़पेपर में क्या निकला है, वो भी हम देखेंगे, न्यूज़पेपर देख के लेंगे और साथ में ही कोर्ट ने क्या नोटिस जारी किया है, वो भी देख लेंगे। तो एक बार वीडियो देखिए आप। Ballot was on 29/12/2022. That amendment ballot is P4, page number 73. By way of this amendment ballot, two provisions were made. That is with respect to granting 5 years relaxation maximum age to the assistant professor, the guest faculty who are appearing for the exam of assistant professor. The second provision was made with respect to additional marks, which are to be given to the guest faculty who are appearing for the post of assistant professor. Thereafter, my lord, on 24/12/2024, a executive order came in force with an intention to bypass the statutory rules. My lord. That order is 24/12/2024, P3, page number 70. By way of this executive order, my lord, a new law was framed wherein 25% reservation was given to the guest faculty who wants to get appointment on the post of assistant professor. In the light of this order, on 30/12/2024, an advertisement is being issued by the MPPS. In that advertisement, my lord, 25% reservation is given to the guest faculty's horizontal reservation. Whereas, my lord, this reservation is given by way of an executive order. The executive order is completely against the rules which were holding the field at the time of issuance of that advertisement. Now, my lord, the Supreme Court in getting out judgments, my lord, has clarified that if the law is being made in exercise of power under Article 309 of the Constitution of India, then the only way to substitute or amend that law is by bringing a gazette notification, and only thereafter the law will hold the field. It is further, my lord, very crystal clear that by way of an executive order, the statutory rules, my lord, cannot be bypassed. No, that facility of reservation is in addition to this, in substitution of this amendment. Sorry. That is in addition or that this amended provision 11(8) has been
Superseded. Yes, my lord. That is the language of the In place of relaxation in age and marks, now they are giving reservation. reservation of 20%, 25%. 25%. Yes. And in order, my lord, which I have imputed, they have specifically stated. Page number 72, my lord, where it is. Where it राज्य शासन एतद द्वारा मंत्री परिषद के आदेश आइटम क्रमांक 42 दिनांक 26/9/2023 के अनुक्रम में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अतिथि विद्वानों को देय आयु सीमा में छूट तथा बोनस अंक संबंधी पूर्व में जारी सभी आदेश संशोधन इस आदेश द्वारा अधिक्रमित करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक श्रेणाधिकारी ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत सहायक प्राध्यापक क्रीड़ाधिकारी ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि विद्वानों के लिए विज्ञापित पदों में आरक्षण एवं अध्यापन कार्य अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट का निम्न अनुसार प्रावधान किया जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को भर्ती हेतु प्रेषित मांग पत्र में विज्ञापित होने वाले रिक्त पदों में 25% आरक्षित क्षेत्रीय क्षितिज क्रम में समान रूप से सभी श्रेणियों तथा अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं ईडब्ल्यूएस में किया गया। So by way of this order, my lord, a new provision was incorporated, thereby giving 25% reservation to the guest faculty who wants to appear for the post of assistant professor. But you are challenging the validity of 11.8 also. 11.8 also. Because There would be no, this is you are seeking quashment of this executive order 24/12/24 as well as 11.8 also. 11.8, which has been brought by way of gazette notification after issuance of the advertisement. There is one old 11.8 and there is one new 11.8. तो नया आ गया कहाँ Yes. where is that? That is P5, my lord, page number 77. इसमें भी आरक्षण की बात है। इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 31/12/2024 आफ्टर इशुएंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। Advertisement में P3 has been given effect or P5? In advertisement, my lord, P3 has been given. 24/12/24 Yes, और आपका ये 31। Three dates are, my lord, important. The date of old gazette notification, that is 29/12/2022. Thereafter, my lord, the date on which executive order was issued, that is 24/12/2024. In light of that executive order, the advertisement was issued on 30/12/2024. And thereafter, a gazette notification was brought on 31/12/2024. P5 की डेट और P5 to date. On page number 76 itself. so now they have amended by way of 31/12/2022. Yes, pilot. So this P3 goes. P3 का relevance खत्म हो गया है. Pilot. That is. This comment goes कि act has been replaced by executive order Yes, my lord. because P5 has been passed. P5, my lord, has been passed. So by which the old 11.8 has been replaced. My lord, in P5 itself, they have written. Page number 77. ऊपर उल्लेखित उपबंध केवल आगामी भर्ती विज्ञापनों पर लागू है। So in the exam which I have participated, the executive order is important because the reservation has been granted by way of issuance of that executive order, which has also been mentioned in the advertisement itself.
Which is that? That is, my lord, the advertisement, my lord, is P1, my lord, और पेज नंबर 54 पे, my lord, यही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो मैंने चैलेंज किया वो एडवर्टाइजमेंट के साथ में। P6 क्या है? P6 इज दी ओल्ड एडवर्टाइजमेंट जिसमें कोई रिजर्वेशन सपोर्ट नहीं। Yes, Mr. Gupta. This is extent policy number. And second thing, the reservation which is provided in executive order is horizontal, but it is not vertical. If vertical reservation will be provided, then my lord, that can be said to be a interference with the rule. Because my lord, where a horizontal reservation is provided, there is no interference, my lord, with the rules, my lord. ये एडवर्टाइजमेंट तो 2025 का है। 2024 में 25 में भी 26/3/25 लास्ट डेट है। सब हेलो को फॉर्म पर तो इशुएंस अपडेट ही मानी जाती है। my lord, जिस दिन एडवर्टाइजमेंट इशू हुई 30/12/24 का। यस, उसी दिन आरक्षण निर्धारित होता है कितने पदों पर कितना आरक्षण होगा, उसके लिए फिर फॉर्म खोला जाए। Further, my lord, there is another illegality. The reservation, my lord, that exceeded 50%. The reservation, my lord, ये इंग्लिश और हिंदी में फर्क भी करती है। my lord, वो जो इंग्लिश वाला है वो पूरा पब्लिश ही नहीं है, वो उसका क्लॉज बी और सी जो है, हाँ आई वो गजट में आया नहीं, इसलिए to the best of my knowledge, my lord, I have tried to translate it. That is जरूरत नहीं, पर उसको होना चाहिए ना इसका। yes, my lord. Page number 13 पे, my lord, I have कैसे वो given इंग्लिश में आपने वो अलग कर दिया कि ये नेक्स्ट उस पे लागू होंगे एडवर्टाइजमेंट आपको भी। अभी क्या स्टेज है? exam स्टेज ऑफ exam में एग्जाम हो तो इंटरव्यू भी हो। yes, my lord. एडवर्टाइजमेंट 30/12 का है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन पीरियड तो फरवरी से शुरू है। Yes, my lord. नहीं हो सकता है 31st में। My lord, that has been clarified by the honorable court also that any law cannot apply retrospectively. Qualification is liable to be last date of submission. This will not come within the review of the qualification. Last जो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो भी है This is, my lord, reservation. this is better provision. They are restricted up to 25%. Otherwise, they were eligible for all 100%. No, my lord. So they are only entitled for earlier they were entitled for relaxation in age and marks. So now their post has been reserved for them. So they are confined to. My lord, इसमें उल्टा हो गया। जहां तक रिलैक्सेशन का सवाल है वो तो दिया ही दिया है। नहीं वो नहीं दिया, वो तो दिया बाहर ना? हो गया। My lord, दिया है। आप That has been replaced. my lord, रिलैक्सेशन भी दिया है, रिजर्वेशन भी दिया है। दोनों का देखिए वो उसी विदिन 20% में ही होगा, 25%। इंटर से होगा, मतलब इंटर से। रिजर्वेशन is That separate class has been created. So all the benefits or concession, relaxation will be available within that That's true, my lord. 25%. That's true.
The question, my lord, is Once you have chosen to apply under that category, my lord, all benefits will be considered under that. my lord, the issue, my lord, is that 25% तो रिजर्वेशन आपने गेस्ट फैकल्टी को दे दी, वहां तक तो कोई इशू नहीं। जहां तक रिलैक्सेशन की बात है, जो गेस्ट फैकल्टी ओपन सीट पे कंटेस्ट करना चाहती है, रिलैक्सेशन तो उन्हें भी मिलेगा। तो एक बार आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा गेस्ट फैकल्टी, देन यू कांट डू इट अंडर। My lord, this law is applicable for SC ST OBC also. अगर मैं SC ST OBC हूँ and I am meritorious enough, then I can get accommodation in lower category. अगर मुझे उससे ज्यादा एग्जैक्टली तो अगर मुझे रिलैक्सेशन मिलता है और वो इस पे नहीं लगे, my lord, this तो कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न जैसे भी नोटिस करिए। my lord, देखो, वीडियो देखने से आपको स्पष्ट हो गया होगा, हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस में साफ-साफ क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में उसने किस आधार पर सहायक अध्यापकों को 25% आरक्षण दिया है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या बेस था, जो आरक्षण का आधार था क्या वही बदल गया है? आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है, वो सारी चीज़ें क्या चली गई? क्या आरक्षण का आधार पता नहीं? दूसरी बात, जो क्षैतिज आरक्षण होता है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज आरक्षण ऐसे होता है कि मान लो ओबीसी है, ओबीसी के अंदर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, अब अतिथि विद्वानों के लिए भी सीट रिजर्व हो गई। तो जो कैटेगरी है उसके अंदर जो आरक्षण चलता है उसी को कहते हैं हम क्षैतिज आरक्षण, और ये क्षैतिज आरक्षण है वो भी बढ़ के लगभग 50% से ऊपर हो गया है। तो हमारी पिटीशन में ये भी पूछा गया है, क्या क्षैतिज आरक्षण की भी कोई कैप होगी क्या? जैसे कि इंदिरा साहनी वाद में कहा गया है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो क्या क्षैतिज आरक्षण में कोई कैप नहीं होगी? दोस्तों, आप अपनी सीट देख के खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि ओबीसी में इस बार इतिहास विषय में 38 सीट आई हैं। भाई 38 सीट आपके लिए नहीं बची हैं, आपके लिए सिर्फ 9 सीट बची है। यानी ओपन सीट जो लड़के हैं या जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ 9 सीट है। ये बॉयज़ भी नहीं कह सकते, ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के लिए है। उनके लिए सिर्फ 9 सीट ओपन बची है, हर कैटेगरी में किसी में 2 बच रही, किसी में 3 बच रही है, क्योंकि बाकी सीटें रिज़र्व हैं। बहुत बड़ा इश्यू है, आप सब लोगों को साथ आना पड़ेगा और मैं कुछ आपको पिटीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए पिटीशन थी हमारी 3355 जिसकी सुनवाई हुई और ये ऑनेबल जस्टिस विवेक रोसिया और ऑनेबल जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी के पास हमारा मामला गया था। अभी कोर्ट थोड़ा रिजिड अपना रहा है, उम्मीद है कि आगे चीज़ें अच्छी हों और 3 तारीख को ये नोटिस जारी हो गया है, आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें पारदर्शी रूप से रखी जा रही हैं, बस उम्मीद है तो आप सब लोगों के सहयोग का, एकजुट हो जाइएगा, यही समय है, ताकि गवर्नमेंट पे भी एक तरह से दबाव बनाया जा सके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।